Hello students, I hope you all are good. Today we are going to start economics class. Let's begin. So, in the first chapter of economics, there are certain topics we are going to be cover in the certain video. The first topic is meaning of economics. Second one, definition of economics, difference between micro and macro, scarcity of resources, economic problem, central problem, opportunity cost. Economic problem and the central problem both are the same, and the causes along with the causes, opportunity cost, and the last one is positive and normative economics. So let us start the meaning of economics first. Economics, the word economics has been derived from the Greek word that is oikon, means individual, household, and the nemein means management. When we combine together oikon plus nemein, eco plus nomos, it is also called eco plus nomos. oikon को हम eco भी बोलते हैं और nemein को हम nomos भी बोलते हैं. The meaning of both the word combined together, the law of individual household management. The law of individual household management बोला जाता है. Now, economics, there are many definition of economics, but there is not a particular one definition which is accepted in whole of the world. So these definitions we are going to be discussed. The first one is economics is a science of human behavior, concerned with the allocation of scarce resources. Here allocation of scarce resources का means क्या हो जाता है यहाँ पे, limited resources. As you know the meaning of resources, what is the meaning of resources? The resources which is useful for us, है ना, and these resources with the passage of time going to be depleted, going to be limited, going to be reduced, okay, because the supply of resources of these resources are limited as compared to the demand for the resources. These resources are furtherly classified into two, man-made resources and the natural resources. So whatever we are talking about here, with the allocation of these resources in such a manner that a consumer can maximize their satisfaction, the second one, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है. साइंस वाई वी आर कॉल्ड साइंस. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस क्यों बोला हमने? इज अ नॉट अ प्योर साइंस. हम आपको फर्दर आगे वाली टॉपिक में बताएंगे कि इन द टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट और द बोथ. ओके, सो अभी हम आपको ये बता देते हैं, जिस तरह से साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है जो आपको बताती है कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंट वगैरह बताती है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी क्या है, अपने एक तरह से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको बताती है कि हाउ टू फॉर्मुलेट वेरियस प्लान एंड पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, हाउ टू सॉल्व द सोशल इशूज. इकोनॉमिक्स ऑलवेज रिलेटेड और द कंसर्न विद द सोशल इशूज. ओके, so economics क्या है? is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce resources and in such a manner that a consumer can maximize their satisfaction. तो हमने कहा जो भी resources हमारे पास है हम उसका इस तरह से इस्तेमाल करें with the least wastage of these resources in order to maximize the फुल सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर अपनी नीड्स को पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई कर सके, प्रोड्यूसर पूरी तरह से उससे पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, और दी सोसाइटी का भी उसमें क्या हो, भला हो सके. तो ये क्या है, आपके डेफिनेशन है. एंड देयर आर सो मेनी डेफिनेशन वी आर गोइंग टू बी डिस्कस. द सेकेंड डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स स्टडी unlimited human wants. As we know that the human wants are always unlimited, okay, and these wants in order to be satisfied these wants people do efforts. इंसान क्या करता है? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स करता है. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए,
तो आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, जिद करते हैं कि मुझे बाइक दीजिए, आप खाना छोड़ देते हैं, आप किसी भी तरह से आप अपने फंडे लगाते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं, किसी तरह से मैं अपने पेरेंट्स को मना सकूं कि वो मुझे बाइक दिलवा दें, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी नीड्स और ज़रूरतें जो भी हैं, ड्रीम्स हैं, वट एवर वी हैव एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, वांट्स, नीड्स, है ना, ऑल दीज कैन बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन वी हैव मनी। जब हमारे पास पैसा होगा, वेल्थ होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको फुलफिल कर पाएंगे। सो हियर इकोनॉमिक्स स्टडी दी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज वांट्स पीपल डू एफर्ट्स एंड आफ्टर डूइंग एफर्ट्स ही एंड शी जनरेट सम वेल्थ, इनकम। उससे क्या होता है, मेहनत करने से उसकी इनकम होती है, और इनकम जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा, एज यू नो दैट दी मनी इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, है ना। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन परचेज एनीथिंग, है ना। वी कैन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी, वी कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। सो हम क्या कर रहे हैं, पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इकोनॉमिक्स ये भी है ना। ऐसे हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो हम वही आपको डेफिनेशन बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज economics is a social science concerned with the allocation of resources, scarce resources, as we understood the meaning of scarce means limited, okay, जिसकी कमी है। scarce resources, these resources are not only scarce but also having alternative uses to produce the goods and services. For example, wood, example क्या होगा आपका, wood। अब हम आपको बता दें, लकड़ी जो है वो क्या है, एक तरह से रिसोर्स है हमारे लिए। तो वो रिसोर्स क्या लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में उपयोग हो रहा है। उसका घर भी बन रहा है, उसका फ्यूल भी है, उसके जड़ी बूटियाँ भी बननी है, उससे पेपर भी बन रहा है ना, उससे फर्नीचर भी बन रहा है ना। तो बहुत तरीके के उसके क्या है, यूजेस हैं। दैट्स वाई द रिसोर्सेज लाइक अ वुड आर स्केयर एंड वी हैव टू बी यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इन सच अ मैनर in order to maximize their satisfaction. Okay, now the next one is economics study the consumer behavior. अब consumer behavior क्या होता है, behavior towards the purchasing the goods and services. How consumer spend is given income on the purchase of different goods and services. जो भी आप इनकम कमाते हैं वो आप क्या करते हो, खर्च करते हो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप ध्यान से अपने पैसे को खर्च करते हो, अपनी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको दिमाग में रखते हुए आप चीज़ों को खरीदते हो। तो यहाँ पर भी ये क्या है कि कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह से आप सिमिलरली आप दूसरी तरह से ले सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अब क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ता है। अब इकोनॉमिक क्या हुआ, इकोनॉमिक मीन्स विच इज रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स खरीदना बेचना, किसके विद द मेन एम इज अर्निंग मनी और द प्रॉफिट। तो हम वो कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे हमारी कोई इंटेंशन नहीं होता है पैसा कमाना, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बोल दें कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीस्ट वर्शिप इन अ टेम्पल। अब के पुजारी क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है टेम्पल में, तो वो उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि वो क्या करे, पैसा कमाए। तो यहाँ पर सिमिलरली यही बोल रहे हैं। तो अब इकोनॉमिक्स ऑलवेज इज कंसर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, इट इज़ नॉट कंसर्न नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टडी ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेसमैन। अब ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेसमैन क्या होता है, अब जो जीवन है किसका, बिजनेसमैन का, वो किस तरह से अपना व्यापन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपना जी रहा है। तो इकोनॉमिक वो भी पढ़ता है, इकोनॉमिक स्टडी दी ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेसमैन। हाउ बिजनेसमैन चूज वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एज यू familiar with the term factor of production, land, labor, capital, entrepreneur. Without these factor of production you cannot be produce the goods and services. So how businessmen choose these factor of production in order to maximize their output or the gain, किस तरह से वो इन कॉम्बिनेशन को बनाता है जिससे वो मैक्सिमम क्या करे, आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो ये क्या है, डेफिनेशंस है। तो ये आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो ये हम इश्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमने आपको समझाई। अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं टॉपिक, देयर आर वेरियस मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन अ
कंट्री। तो हमारे क्या थे, कुछ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। वो कौन कौन से मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे? एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, अल्फ्रेड मार्शल, लायनल रॉबिन्सन एंड डॉक्टर साइमल्सन। तो एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज, according to the Adam Smith, he says that economics study social economics study the science of wealth. okay, तो यहाँ पर उन्होंने बोला एडम स्मिथ ने कि पैसा ही सब कुछ है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन परचेज एवरीथिंग, है ना। सो बट अदर इकोनॉमिक्स क्रिटिसाइज द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या थी? स्टडी द साइंस ऑफ वेल्थ, पैसा ही सब कुछ है। बट रॉबिन्सन ने कहा जहाँ पर पैसे को कंसीडर किया जाता है वहाँ पर देयर इज़ नो प्लेस ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड फैमिली, सो ऑल द मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जो भी पैसा है वो सोसाइटी के वेलफेयर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सोशल वेलफेयर। ओके, अब हम करते हैं लायनल रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने किसके ऊपर फोकस किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया मार्शल को कि आपकी डेफिनेशन भी क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है और इनकम्प्लीट है, बिकॉज यू आर नॉट कंसिडर द रिसोर्सेज विच आर वेरी स्केयर। you cannot be satisfy the needs and wants of the people without the resources. So the definition must be in a definition of economics must be mentioned scarce resources. तो उन्होंने कहा कि पैसे के साथ साथ सोशल वेलफेयर के साथ साथ आपको क्या मेंशन करना चाहिए? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को मेंशन करना चाहिए, जिसके बेसिस से आप क्या कर सकते हो? लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आया, लायनल रॉबिन्सन ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या हुआ? ये रॉबिन्सन ने क्या बोला? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को कंसर्न किया। अब आ जाते हैं लास्ट, डॉक्टर सैमुअल्सन। डॉक्टर सैमुअल्सन ने कहा कि आप सभी अपनी जगह आप क्या है? सही हैं। यू ऑल आर करेक्ट इन योर प्लेस, बट यू ऑल आर कंसिडर एट प्रेजेंट ओनली, यू डोंट फोकस द फ्यूचर। आपने तो आने वाले समय के बारे में सोचा ही नहीं कि दीज रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे आने वाली जनरेशन भी क्या हो, उससे फैमिलियर हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एट प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी फोकस किया। फ्यूचर कंसर्न। तो ये आपका क्या रहा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस रही। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स को हमने क्या किया? दो भागों में डिवाइड किया। वी आर फर्दरली क्लासिफाइड इकोनॉमिक्स इनटू टू, माइक्रो एंड मैक्रो। बट इन 11th क्लास माइक्रो